Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta. Back in the year 2012, I secured All India Rank 6 and All India Rank 10 in AIPMT names respectively. So in this video, I'll be talking about how do you give subject-wise tests, sub-syllabus tests and mocks, and what is the importance of mocks. So I'll first begin that mocks are actually extremely important as far as your preparation is concerned. The reason why mocks are so important, see, everybody studies, before the 3-4 months before the exam, almost everyone is studying. People are trying to complete their syllabus, people are trying to complete their backlogs, people are trying to complete, revise it again and again if they've already completed the syllabus once. Now, you have to realize when the competition is as tough as that 16 lakh students are appearing and there are only 5 to 10,000 government seats and everybody is eyeing for a government seat. And if you want to get into that, this 99 percentile or 98 percentile, in such a scenario, your intelligence and your level of preparation, that is not the only factor that determines your rank. What also determines your rank is your level of preparation as far as the exam day is concerned, your luck on the exam day, and whether the nerves get a better of you or not. I've seen so many students, I've seen so many of my colleagues, I've seen so many of my juniors who had the excellent level of preparation and were intelligent, but on the exam day they faltered. Why? Because they did not practice enough and they did not practice enough mocks. What happens is कि एग्ज़ाम डे बहुत एंगजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, और होगा भी, क्यों नहीं होगा? दिस इज द वन ईयर एग्जाम दैट डिटरमाइंस वेदर यू बिकम अ डॉक्टर और नॉट. होगा, क्यों नहीं होगा? एंड इन ऑर्डर टू बीट दिस एग्जाम स्ट्रेस, अगर तुम पहले ही बार बार मॉक्स दे के रखोगे तो एक्चुअल एग्जाम जस्ट अनदर टेस्ट लगेगा. इट विल जस्ट फील लाइक अनदर मॉक, इट विल जस्ट फील लाइक अनदर टेस्ट. सो स्ट्रेस की एंगजाइटी कम होती है. इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस इनफ मॉक्स, we do not practice enough full length test or enough full length syllabus test. So मैंने एकदम पूरे full length जो थे ना आखिरी के 1 महीने या 45 days में ही दिए थे. I myself won't deny that कि कोई extraordinary number नहीं दिए थे. ऐसे 100-200 मॉक्स दे के मैं भी नहीं बैठा हुआ था. पर एग्जाम से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले, 1.5 months, even I started giving full length, कि पूरा का पूरा syllabus के मैं अपने टेस्ट देने शुरू कर दूँ. ठीक है? एंड even before that, back in December and January, not even December, January, in fact, back in, let's say, November itself, मैं biology के full syllabus test देना शुरू कर दिया था. January से chemistry के full syllabus test देना शुरू कर दिया था. तो although पूरा का पूरा तीनों चीज़ें एक साथ का नहीं, but एक subject का full syllabus test देना शुरू कर दिया था, to see कि मेरी कितनी preparation है. एंड इन मॉक्स देने से क्या होता है? एक्टिव रिकॉल होता है. जो चीज़ तुमने अभी रिवाइज नहीं की है, उससे पुरानी चीज़ जब तुम उनको थोड़े टाइम बाद देखोगे, यू विल रियलाइज कि तुम्हारी मेमोरी, हाउ मच मेमोरी डू यू हैव, एंड द थिंग्स दैट यू हैव फॉरगॉटन, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर. अ मिस्टेक डन बिफोर द एग्जाम बिकम्स अ करेक्ट ऑप्शन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस. ओके, तुम्हारी एंगजाइटी कम होगी एग्जाम डे में, तुम्हारा एक्टिव रिकॉल से मेमोरी इंपॉर्टेंट होगी अगर मॉक्स प्रैक्टिस करोगे. एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट, जो बहुत लोग ना मिस्टेक कर देते हैं, एक OMR शीट होनी चाहिए. एक OMR के बेसिस पे लिखो. तुम्हें लगता है ना कि अच्छा मैंने 3 मार्क किया था जबकि मैं 4 सोच रहा था. नहीं, तुम खुद को उसमें कम नंबर दो. गिव योर सेल्फ रॉन्ग मार्क्स. इनफैक्ट अपनी नेगेटिव मार्किंग इन दीज मॉक्स ना ज़्यादा रखो एल से. मैं तो इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग -1 ही -2 रखता था. That I actually used to do. For example, if I was practicing 50 questions of biology, so not 50, sorry, 100 questions of biology, तो that was 400. हमारे टाइम पे 800 मार्क्स का पेपर होता था. I used to be +4 for correct answer, but -2, not -1, -2 for a negative. And then I used to calculate my score and think, okay, whether I'm doing good or not. I used to test myself in that way. Because अगर वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखोगे तो एग्ज़ाम के दिन थोड़ा यू विल फील मच ईजियर एक्चुअली. ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू, अगर अच्छे से मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, अच्छे से OMR शीट पर लिखनी होगा, लेट्स से तुमने सेकंड ऑप्शन का सोचा था कि सेकंड ऑप्शन का आंसर बी होना चाहिए. एग्जाम के दिन देखना थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर थर्ड का ऑप्शन कर दिया, तुमने 5 मार्क्स लूज नहीं किए. यू डिड नॉट लूज 5 मार्क्स. इट इज़ पॉसिबल दैट इफ़ यू आर इन द वर्ज ऑफ वो, यू लॉस्ट 1 year ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक OMR में ऊपर नीचे करने से. एंड ये सब कुछ अवॉइड हो सकता है इफ़ यू डू एनफ नंबर ऑफ मॉक्स. सो मॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस करो? इसके लिए मेरे पास एक रिकमेंडेशन है. दिस NCERT based NTA test series by AV publications. So basically the really good thing about this is, see the mocks तो आप देखो बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें मार्केट में. That's not the point. First NCERT based है obviously. The second thing is ये एक्चुअली में ना पेपर, जैसे एक्चुअल पेपर होगा ना तुम्हारा, तुम एक्चुअली एग्जाम में जाओगे. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई 2012 AIPMT एग्जाम. सील है, अंदर एक OMR शीट है, तुम एक्चुअली OMR में आंसर भरोगे.
ठीक है। एंड मेक इट अ पॉइंट कि जब ये टेस्ट सीरीज तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम 3 घंटे में करो, इनफैक्ट आई से 2.5 hours में करो, खुद को नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा दो, एंड देन सी हाउ मच आर यू आर स्कोरिंग इन दिस एग्जाम, एंड सी तुम्हारी एक्चुअली प्रिपरेशन कितनी है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव. मोर इम्पॉर्टेंटली it has been इसके जो papers हैं they have been graded into 3 levels: easy, medium, hard. तो if your preparation is good, तुम hard में भी 650 600 plus score कर रहे होगे. If your preparation is slightly on the lower side and you need to pull up a bit further, maybe easy and medium में आ रहे होंगे, hard में नहीं आ रहे होंगे तुम्हारे. So in such a scenario I'll say do these tests. 10 टेस्ट हैं, कितने करने हैं, कैसे करने हैं मैं भी बताता हूँ. एवरी 3rd to 4th day कर लो, ठीक है. तो ताकि लास्ट के 1 महीने में 10 टेस्ट तो सॉल्व करने ही होते हैं. नाउ आई कम टू हाउ मेनी, अगेन आई से एवी पब्लिकेशन, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. यू कैन गेट दिस. अगेन नॉट टू एक्सपेंसिव, अराउंड 400-500 रुपीज़ है, दैट्स इट. 40 रुपीज़ पर टेस्ट यार, और क्या चाहिए तुम्हें फॉर दैट मैटर, है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यार, एक्चुअली आई गॉट दिस एज अ रिकमेंडेशन बट कि फॉर प्रमोशन, बट द गुड थिंग इज दैट यार ये सील्ड है, अंदर हुआ हमारे एक प्रॉपर एग्जाम की फील तुम्हारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में तुम्हें मिल सकती है. नाउ एज फार एज हाउ मेनी मॉक शुड बी डन यार, आई विल से दैट यार एक मॉक ना एवरी 3rd to 4th डे करना होता है. आखिरी 60 to 90 डेज में एवरी 3rd to 4th डे एक फुल सिलेबस मॉक करना होता है, और 3 घंटे डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि 1.5 hour दे दो, बायो का 1 घंटे का टेस्ट दे दो, या फिर केमिस्ट्री का 1 घंटे का दे दो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब एक्चुअली में एग्जाम होता है 10 to 1 या 9 to 12. वो तो करना ही है, वो तो रोज़ ही करना है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. बट दिस फुल सिलेबस टेस्ट एवरी 3rd to 4th day. So for the last 1.5 months to 2 months before the exam, there should be a test series, an offline test series with you, so you can actually practice and see exam day पे कैसा होता है. ठीक है. So hope you enjoyed this video. Thank you and have a nice day.